your own YouTube channel Atri Academy. Today in this video we will study about metals and non-metals. In this session of the video we will study about the physical properties of metals and non-metals. And the fifth property is conductance. Next and fifth property is conductance. Conductance means all the metals are good conductor of heat and electricity. Example, silver is the best highest is the most conductive element. Metal is the most conductive. Second comes the turn of copper. Second comes the turn of copper is second, and third is the aluminium. It is the third. We do not go for gold because gold है irrespective. गोल्ड अपने आप में सबसे यूनिक धातु है. जितने भी गुण धातु होते हैं वो सारे गुण सर्वोत्तम रूप से गोल्ड में पाए जाते हैं. बिकॉज बीइंग वेरी कॉस्टली वी डू नॉट कंसिडर इट. क्योंकि जब हम बात करते हैं कंडक्टेंस की, तार वगैरह बनाने पड़ते हैं तो सोने के तो तार बनते नहीं, इसलिए हम उसका कंडक्टेंस में इसका इस्तेमाल करते ही नहीं. इफ वी गो फॉर देन प्रैक्टिकली इट इज फाउंड द सिल्वर इज द मोस्ट कंडक्टिव मेटल. यानी कंडक्टर का मीनिंग क्या होता है? These can allow the electricity or heat go through them. मतलब जैसे मान लीजिए ये एक रोड है, इट इज मेड अप ऑफ मेटल्स. ये किससे बनी हुई है? मेटल से. ठीक है. अगर इसका मान लीजिए ये वाला सिरा है ए, इसको हम किसी करंट के सोर्स से जोड़ देते हैं. करंट सोर्स से, ये जब करंट सोर्स से जोड़ेंगे ना तो इसके दूसरी तरफ अगर हम टेस्ट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ क्या मिलेगा? करंट मिलेगा. ये यहां अगर हमने यहां टेस्टर लगाया, यहां से हमने सोर्स के साथ जोड़ा है, तो ये क्या इंडिकेट करता है? ये करंट इसमें से होता हुआ यहां गुजरा है. इट इज दिस. देयर इज अनदर सिंपल एक्टिविटी हाउ यू कैन टेस्ट वेदर सब्सटेंस इज कंडक्टर और नॉट. द वन एग्जांपल आई टेल यू. मेक ए सर्किट. हाउ यू कैन मेक ए सर्किट? टेक ए बल्ब ऑफ अ टॉर्च. बैटरी का जो टॉर्च होती है, आप इसका बल्ब ले लीजिए, एलईडी भी ले सकते हैं आप, और इसको लेकर के आप एक सर्किट बनाइए. ये जो सिंबल है जो मैं बना रहा हूं, ये होता है बैटरी का सिंबल. ठीक है. बड़ा जो ये मार्क है, ये प्लस साइड होता है बैटरी की, और ये माइनस यानी नेगेटिव टर्मिनल. ठीक है. अब हम यहां इसको कर देते हैं. वी कीप दीज टू एंड्स फ्री. ठीक है. अब हम क्या करते हैं? वी टेक अ पीस ऑफ अ मेटल. हम क्या लेंगे? कोई टुकड़ा लेंगे मेटल का. ठीक है. मेटल का कोई भी टुकड़ा लेंगे, या हमें पता भी नहीं ये मेटल है या नहीं. वी विल टेक a substance of made up of that and unknown material and we will place it between these two points. ठीक है. इस पॉइंट को इसके साथ टच करेंगे और इसके साथ इसके टच करेंगे. If the bulb starts to glow, अगर ये बल्ब जल उठे तो मींस ये क्या है? कंडक्टर. ये क्या है? कंडक्टर. You can this way can know whether a substance is conductor of electricity or not. यानी कोई पदार्थ अपने भीतर से विद्युत को आने जाने देता है या नहीं. अगर मेटल्स हैं, जितने भी मेटल्स हैं, all the metals they are conductor of electricity. So when in such type of the circuit any metal piece is placed here, the bulb will glow because in the circuit the current will flow. The circuit is completed by placing a metal piece here. In case if you take any other thing other than metal, say for example you take a carbon piece, say for plastic rod or glass rod, then the bulb will not glow because this glass or plastic rod, it does not let the current pass through it. So depending upon this, whether the substances they can allow the current to pass through them or not, they substances are of a
two type. I tell you how the substances are of two type: conductor and non-conductor. Conductor and non-conductor. Conductor and non-conductor of heat and electricity. Heat and electricity. Those substances which allow heat and electricity to pass through them are known as conductor. And example are metals. All the metals they are conductor. ठीक है, इस तरह से आप सर्किट बना के अगर मेटल पीस रखोगे तो वो बल्ब जलेगा, यानी कंडक्टेंस होगा. एंड व्हाट आर नॉन कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी? हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. Those substances which does not allow heat and electricity to pass through them are known as non-conductor. इसका एग्जाम्पल आएगा नॉन मेटल्स. So it is another property, conductance and non-conductance. ये फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारी नॉन कंडक्टेंस. ठीक है, नॉन कंडक्टेंस मीन्स ऑल नॉन मेटल्स आर नॉन कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट. फिर एक अपवाद आएगा ग्रेफाइट. एक्सेप्ट ग्रेफाइट which is an allotrope. of carbon. देखिए कार्बन का ही है, पहले देखा था ना. We did study the metals, they are soft and the hardest was the diamond. Diamond was a form of carbon, that was an allotrope. Here graphite is another allotrope, यानी कार्बन का एक दूसरा रूप है. इसको हम हिंदी में बोलते हैं अपर रूपता. एक ही तत्व अनेक भौतिक रूपों में रहता है, इस गुण को बोलते हैं अपर रूपता. जैसे कोयला काला है, कार्बन से ही बना है. हीरा जो है बहुत चमकीला ब्राइट है, कितना ब्राइट है, ये देख लो, ये भी किससे बना है? कार्बन से ही बना है. जो पेंसिल के अंदर काले रंग की जो रोड आप देखते हैं, ये होता है ग्रेफाइट. ये ग्रेफाइट भी किससे बना हुआ है? कार्बन से ही बना हुआ है. सो देखो सारे के सारे क्या है? अलग एक एलिमेंट से बने हुए हैं कार्बन से, लेकिन उनके भौतिक रूप जो है, फिजिकल स्टेट, फिजिकल अपीयरेंस, ये डिफर कर रही है, इनको बोलते हैं एलोट्रोप. सो ऑल द नॉन मेटल्स दे आर नॉन कंडक्टर. तो बात हम कर रहे थे, इसको कंडक्टर को हिंदी में बोलते हैं चालक या सुचालक कहते हैं ना, विद्युत के सुचालक या, और इनको बोलते हैं कुचालक. क्या बोलते हैं इनको? कुचालक. इनका दूसरा नाम होता है विद्युत रोधी या उष्मा रोधी. रोधी का मतलब जो रोकने वाले होते हैं. So this is the fifth property of metals and non-metals. All the metals, they are very good conductor of heat and electricity, and at the same time all the non-metals, they are non-conductor except one, that is graphite, which is conductor of heat and electricity, and it is not a good conductor. It conducts electricity and heat, but not to that extent the metal can. And now come back again to the metals. As I said you, these are the most conductive element. The first position is occupied by silver. Silver is the most conductive. Second position by copper. Third is by aluminium. And then we say for lead. Lead is the poorest conductor. See here, ये एक्सेप्शन याद रखिएगा, एग्जाम में ये पूछे जाते हैं. जो लेड है ना, ये भी धातु है,
सबसे कम चालक है, यानी दूसरों की तुलना में, नॉन मेटल की तुलना में तो ये बहुत अच्छी चालक है, इनके साथ इसकी तुलना में तो फिर भी है, लेकिन जो दूसरी धातुएं जो है दे अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम विद द स्पीड ऑफ द लाइट। एज द व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट? लाइट कैन ट्रेवल 3 lakhs किलोमीटर पर सेकंड। The silver, it is this, it can allow this electricity to pass through it with this speed. So in that comparison, lead is poor conductor, poorest conductor. And similarly, if we go for iron, iron इसका फॉर्मूला होता है Fe, लोहा, कैपिटल F स्मॉल e, और lead का मैं फॉर्मूला देता हूँ, lead बोलते हैं कैपिटल P और स्मॉल b। तो स्टूडेंट्स इसको वीडियो को जो बार बार देखेंगे आपको याद हो जाएगा। कॉपर का मैंने बता ही दिया था, कॉपर का क्या था? C कैपिटल U स्मॉल, एल्यूमिनियम का A कैपिटल L स्मॉल, और सिल्वर का मैंने बताया था A कैपिटल और G स्मॉल। अब यहाँ पे लेड P कैपिटल एंड B स्मॉल एंड आयरन, और फिर आता है बिस्मिथ, बिस्मिथ, बिस्मिथ यहाँ आता है B कैपिटल और I स्मॉल, B कैपिटल और I स्मॉल, और ये आता है मरकरी। मरकरी मैं पहले बता चुका हूँ, मरकरी यानी पारा, जो थर्मामीटर के अंदर आप देखते हैं ना, डॉक्टर का जो थर्मामीटर होता है उसके नीचे कांच के रोड है वो थर्मामीटर, उसमें जो ब्राइट पोर्शन होता है, चमकीला सा भाग दिखाई देता है नीचे, वही क्या पारा है। तो ये क्या है? ये पुअर कंडक्टर है, दीज आर पुअर मींस न तो ये क्या सकते, ये करंट बहुत मारते हैं। अगर आप एक लोहे के रोड को गलती से छू लोगे, जैसे लोहे के बिजली के पोल होते हैं, इलेक्ट्रिकल पोल्स, उनमें अगर करंट लीक होता है तो दे आर वेरी डेंजरस, दे सफिशिएंटली कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी टू कॉज डैमेज, ठीक है। लेकिन क्या है कि इनके अंदर पुअर कंडक्टर कहने का मतलब ये हो गया कि इनके अंदर अगर हम इनको यूज करते हैं एज ए वायर, देन द इलेक्ट्रिसिटी इज वेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ हीट। आपने देखा कि कई बार आपने देखा कि तार गर्म हो जाते हैं, जब आप विद्युत उपकरण का इस्तेमाल करते हैं उसके तार क्या है? गर्म हो जाते हैं। क्यों गर्म हो जाते हैं? प्रतिरोध के कारण। इनके अंदर प्रतिरोध ज्यादा आता है। बड़ी कक्षाओं का विषय हम फिर बाद में स्टडी करेंगे, दूसरा विषय है, अगले किसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो इफ यू गो फॉर द मेटल्स, दीज आर द यूनिक थिंग टू नो अबाउट द मेटल्स इन कंसर्न ऑफ द कंडक्टेंस। सो एक बार मैं हीट के बारे में और बता देता हूं कि हाउ दे कंडक्ट हीट। देखिए हीट के बारे में क्या रहता है, देखिए हाउ विल यू कम कि कोई हीट करता है या नहीं करता। देखिए आप कोई भी एक एलिमेंट, कोई भी आपको पता ही नहीं क्या है सब्सटेंस, मेटल है या नॉन मेटल, ठीक है। आपके आंखों पे पट्टी बांध दी गई है या आपने पहले कभी देखा ही नहीं है, आप उसकी रॉड ले लीजिए, क्या है? रॉड, ठीक है। टू वन एंड ऑफ दिस, ये आपने क्या ले लिया? बर्नर है, ये क्या है? गैस बर्नर, गैस बर्नर, ठीक है। और यहां से आपने इसको पकड़ लिया अपने हाथ से, ठीक है। इफ यू पुट द वन एंड ऑफ द रॉड, यू डू नॉट नो ऑफ व्हाट मटेरियल इट इज मेड अप ऑफ, यू डू नॉट नो किस पदार्थ से ये बनी है, बस आपने एक रोड ली और इस रोड को यहाँ पे एक गैस बर्नर के ऊपर फ्लेम पे रख दिया, ठीक है। इफ इन आफ्टर सम टाइम हीट रीच दिस एंड, अगर इस रोड के सेकंड एंड पे, दूसरे सिरे पे हीट अगर पहुंच जाती है, अगर आपको अपना हाथ गर्म लगने लगता है, तो ये एब्सोल्युटली क्या है? मेटल। ये क्या है? मेटल, ठीक है। बिकॉज मेटल्स आर कंडक्टर। अगर मान लीजिए ये मेटल नहीं है तो देखिए क्या है, मान लीजिए ये प्लास्टिक रोड थी सपोज, तो क्या होगा? ये यहां से जल जाएगी, ये यहां से जल जाएगी, लेकिन हीट को वहां पर नहीं जाने देगी। अगर मान लीजिए ये लकड़ी का है तो ये जल जाएगी, जलती हुई यहां तक वहां जाएगी, ये खुद डैमेज होती चली जाएगी, लेकिन डज नॉट लेट द हीट टू गो टू अनदर एंड। दिस इज अ वेरी कॉमन एक्टिविटी यू कैन डू इवन एट योर होम, at your home. So you take different pieces. You can take glass rod. When you take glass rod will, it can be hot here at this point, but this hotness will not reach to that second end. This is, ये प्रॉपर्टी भी है, इसी प्रॉपर्टी के कारण जो हमारे यूटेंसिल्स होते हैं, यूटेंसिल्स यानी जो रसोई घर के बर्तन होते हैं, जैसे मान लीजिए हम चाय का पतीले की बात करते हैं, तो चाय के पतीले के अंदर जो होता है हमारा, जो उसका जो हैंडल है, उसको पकड़ने का जो हत्था है, ठीक है। The handle of the utensils are made up of non-metals. Non-metals आपने देखा ना प्लास्टिक का, ठीक है। एक प्लास्टिक आता है बेकेलाइट, it is blackish in color. This bakelite, it is used to make the handles of the utensils. क्यों? Being non-metal, it does not let the heat to pass through it. ये अपने अंदर से हीट को गुजरने नहीं देता, इसीलिए
जो खाना पकाने के बर्तन हैं, जो फ्राई पैन्स हैं, उनको जो हैंडल जो है वो नॉन मेटल्स के बनाए जाते हैं, ठीक है, लकड़ी का भी हो सकता है। एंड द रेस्ट ऑफ द पार्ट विच इज यूज्ड फॉर द कुकिंग इट इज ऑल मेड फॉर मेटल्स। ये किससे बनाया जाता है? मेटल से, ठीक है। आपके केतली का ये वाक्य है जिसमें आप चाय बनाते हैं, चाय आपकी तैयार होती है। आपका कुकर जो है, जो आपका फ्राई पैन है, वो सब किसका बना हुआ है? मेटल्स का। और दूसरी बात, क्योंकि देखिए बीइंग सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर, ये कंडक्टर ऑफ हीट एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी। हीट के लिए भी ऐसा ही है। Silver is the first, copper is the second, and aluminum is the third good conductor of heat. And lead is the poorest conductor, and iron, bismuth, and mercury they are poor conductor. मतलब they lie in between the two extreme. So ये आपने देखा होगा most of the times the fry pans, the bottom of the fry pan is made up of a copper. Is made up of a copper. Why it is made of copper? See here, silver is the most conductive for heat. सबसे ज्यादा जो उष्मा की या विद्युत की सुचालक वो कौन है? सिल्वर। तो अगर हम किसी बर्तन को सिल्वर से बनाएंगे तो ये बहुत एक्सपेंसिव होगा। इट इज नॉट अफोर्डेबल फॉर एवरी पर्सन। सो इट इज द कॉपर विच इज गुड कंडक्टर, सफिशिएंटली गुड कंडक्टर। सो आपने देखा भी होगा जो लोहे के पतीले हैं उसकी तली हुई, या फिर वो एल्यूमिनियम के बने हुए हैं। एल्यूमिनियम क्योंकि ये लाइट इन वेट है, तो इसीलिए जो एल्यूमिनियम के बनाए जाते हैं, तो इनके अंदर जो तली होती है, द बॉटम ऑफ द यूटेंसिल्स ऑफ cooking utensils is made up of a copper. Why? Because copper being the good conductor and cheap in price, available easily, so the bottoms of the utensils are made up of a copper. Are made up of a copper, and rest of our other are made of aluminium, because aluminium is a good conductor and it is light in weight. Light in weight. So mostly you will find the utensils made up of aluminium and copper. Bottom is of copper and rest of the body by aluminium. One thing more. Now these days these are non-sticky cookwares. Cooking wares are available. Cooking wares are available. Why these are not any there is a polymer Teflon. There is a polymer Teflon. Teflon is a polymer. This Teflon coat is made inside the frying, inside the utensil. This Teflon on these metal, the utensil is made of metal, no doubt, because it need to conduct heat. So these are basically need to be made up of what we say metals, but they are coated inside with the Teflon. Because of this coat of the Teflon, they become non-sticky. So the non-sticky cooking wares which are available these days, they appear slightly blackish in color. This blackishness is because of the polish of the Teflon on them. So this is the fifth property of the metals and non-metals. Now we discuss about the sixth property. Now the sixth property of metals and non-metal is the luster. It is luster. इसको बोलते हैं चमक. All the metals are lustrous. Lustrous in nature. All the metals are lustrous in nature. White and these are non-lustrous. Non-lustrous. The non-metals are dull. The non-metals are dull. Means are not lustrous. Not lustrous. See, यह एक बात बता देता हूँ आपको चमक के बारे में. Because metal being very reactive, the metal react with the water vapors present in air, carbon dioxide present in the air, and oxygen present in the air. Because we all are surrounded by air, and this air is rich in water content in the form of humidity, carbon dioxide, and as well as the oxygen. 21% of the air is composed of oxygen. It is a mixture of gases, has 21% of oxygen. So because the metals, they are very reactive
ये बहुत क्रियाशील होती हैं। सो दीज मेटल्स दे रिएक्ट विद द ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर, दे लुक dull in appearance, but actually it is not that behavior of they are naturally very lustrous. अगर इस तरह से कोई, जैसे लोहा ले लीजिए आप, लोहा रखा हुआ है तो वो क्या देगा, इट विल कैच व्हाट वी से rust, it will catch rust. So it is called rusting of iron. Because of rusting it becomes dull and non-lustrous. But in any metal, whichever, the silver it looks black, iron माने लोहा, इसका फार्मूला Fe। आयरन क्या होता है, इसमें होता है रस्ट, ठीक है। एक रस्ट किसकी वजह से होता है, Fe2O3 डॉट XX2, यहाँ पे H2 आ गया और O3 ये कार्बन और ऑक्सीजन के कारण से बनता है, यानी ये आयरन का एक ऑक्साइड होता है। जब आयरन खुले में रखा जाता है तो उसके अपने ऊपर इसकी एक परत बना लेता है, ये परत क्या है, जंग, ठीक है। इसी तरह से हम बात करते हैं सिल्वर की। सिल्वर जो होता है वो ब्लैक हो जाती है, व्हाई बिकम इट ब्लैक, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ Ag2S। इसको बोलते हैं सिल्वर सल्फाइड, सिल्वर सल्फाइड। जैसे लोहे का जंग होता है ना, इसी तरह से जो चांदी के बर्तन है या चांदी के जो आभूषण वो काले हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर सल्फाइड। ये जो सल्फर का फ्यूल जो होता है हमारा डीजल, इसमें सल्फर के कंटेंट होते हैं, तो ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। अगर कहीं एयर में सल्फर के ऑक्साइड अवेलेबल हैं तो वहां पर जो चांदी के बर्तन होंगे, चांदी के जो आभूषण होंगे, यूजुअली ये पॉल्यूशन होता ही है, तो दे बिकम डल ब्लैक। Why? Because of formation of this silver sulfide. Now there is copper. Copper is another. We use this copper, capital C, small u. It becomes green in color. You know, a coating of a green substance is formed on the substances on the vessels made up of the copper. This is because of formation of copper carbonate and copper hydroxide OH2. CuCO3 डॉट CuOH होल ट्वाइस। कॉपर इसको बोलते हैं कॉपर कार्बोनेट एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड। These two substances because of the pollution, because of this air and carbon dioxide and moisture present in air, they deposit on the surface of copper. तो क्या करते हैं हम, आप जैसे ही इनको मांझना शुरू करते हैं, ठीक है, we start to rub it with some scrubber or you may take a sandpaper. Their layer of this rust on the iron, layer of silver sulfide on the silver, layer of copper carbonate and copper hydroxide on the copper, they disappear and they become very shiny. Iron become whitish, very whitish, because you know, most of you take a knife, you regularly use the knife, ठीक है, it becomes very bright white in coloration. Its luster is bright white. Similarly, silver it is also white. जो हमारे मिरर्स रहते हैं हमारे, जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं, दर्पण, उनमें जो हम देख पाते हैं वो सिल्वर के कारण होते हैं। इट इज ए ग्लास शीट एंड बिहाइंड टू दैट ग्लास शीट सिल्वर इज कोटेड, एंड अनदर सब्सटेंस इज कोटेड टू लेट द लाइट रिफ्लेक्ट। तो ये जो चांदी जैसा दिखाई दे रही है, इतना चमकीला ना जो चेहरा जो हम देख पाते हैं मिरर में, वो किसकी वजह से है? दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ सिल्वर की जो व्हाइटेस्ट लस्टर के कारण। कॉपर भी ऐसे ही है, इसके अंदर कॉपर के अंदर क्या है? रेडिश ब्राउन। इट इज रेडिश ब्राउन इन अपीयरेंस। इट हैज स्पेशल कलर, आप देख के बता सकते हो, ठीक है। लेकिन अब हम बात करते हैं नॉन मेटल्स की। इन केस ऑफ द नॉन मेटल्स दे आर डल, दे डू नॉट हैव लस्टर इन देम। अब आप ये बात कहेंगे कि सर क्या बात करने पढ़ा रहे हैं, प्लास्टिक की चीजें, कांच की चीजें, ये तो बहुत चमकती हैं। आपने कोई कांच का टुकड़ा लिया, दिस पीस ऑफ दिस ग्लास इज वेरी ब्राइट,
A new plastic toy, it appears very bright. So, where does this luster is? This is a temporary, it is only for appearance, to judge whether it is the natural property of the substance or not. Lustrousness is the natural property of the metals, but non-lustrousness is the natural property of the non-metals. What is, how you can differentiate? आप कैसे करोगे? There is a very small activity. कोई भी सख्त पत्थर, जैसे पत्थर का टुकड़ा ले लीजिए और उसको रगड़ दीजिए किस पे, जो भी चीज है. अगर ये प्लास्टिक का कोई खिलौना है, इट्स अ न्यू ऑल ब्रांड न्यू प्लास्टिक टॉय और a glass seat, you scrub it with a hard substance, all its brightness will disappear. It means it is just for appearance. It is for the finishing. It is just the polished. It is just the polished luster. Actually, they do not have luster in them by nature. It is not their property. It is acquired property by the man. Man synthesizes such a way that they become shiny. But this shining is all temporary. The permanent thing that you can judge it by rubbing with some hard substances. If it by rubbing becomes bright, it is metal, and if it loses its brightness, it is a non-metal. So it is another test.